السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اندرا پارک کا وی ایس ٹی تعمیر کیے جانے والے ایلیویٹڈ کاریڈور اسٹیل برج کے تعمیری کاموں کا رکھا گیا سنگ بنیاد۔ مرکزی مملکتی وزیر اور ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق نے تقریب میں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر کی وضاحت کے باوجود کانگریس پارٹی مندر مسجد انہدامی کارروائی پر عوام کو بھڑکا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ اقلیت دوست اور سیکولر ٹی آر ایس قائدین نے کیا دعویٰ۔ سیکریٹریٹ میں واقع 2 مساجد کے انہدام کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر کا علامتی پتلا نظر آتش، کانگریس اقلیتی قائدین کا احتجاج۔ حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے ٹیسٹنگ سینٹر سے استفادہ کرنے رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عوام سے کی اپیل۔ گاندھی ہاسپٹل میں کانٹریکٹ اساس پر خدمات انجام دینے والی نرسز نے خدمات کو مستقل کرنے کے مطالبے کے ساتھ درج کروایا احتجاج۔ طبی خدمات کا کیا گیا بائیکاٹ۔ اپل سڑک حادثے میں کار سے ہوئی ٹکر میں بلو کوٹ ایس پی او فوت، متعلقہ پولیس نے کار ضبط کرتے ہوئے مقدمہ کیا درج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں ٹریفک کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مختلف پروجیکٹس کے تحت کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اندرا پارک سے وی ایس ٹی تک پہلے مرحلے کے تحت جانے والے ایلیویٹڈ کاریڈور اسٹیل برج کے کاموں کا کے ٹی آر نے مرکزی مملکتی وزیر کشن ریڈی کے ہمراہ سنگ بنیاد رکھا۔ ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو، میئر بی رام موہن، کمشنر بلدیہ لوکیش کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اپنے خطاب میں کے ٹی آر نے کہا کہ 426 کروڑ روپے کے مصارف سے اس علاقے میں 2 فلائی اوور کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ تلنگانہ حکومت گزشتہ 6 سالوں سے حیدرآباد میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے پروگرام کو انجام دے رہی ہے، جبکہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی تیزی کے ساتھ سڑکوں کی مرمت کے کام انجام دیے گئے۔ کے ٹی آر نے اعلان کیا کہ امبرپیٹ فلائی اوور کے کاموں کا بھی جلد آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے ریاست میں سڑکوں کی تعمیر اور دوسرے ترقیاتی کاموں کے لیے دفاعی اراضی کی فراہمی پر مملکتی وزیر داخلہ کشن ریڈی کی توجہ دلائی اور کہا کہ اگر دفاعی اراضیات کا حصول ہوتا ہے تو اور بھی کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر کے ٹی آر نے محکمہ بلدیہ کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے غیر معمولی اقدامات کیے گئے، جس کی وجہ سے وائرس پر قابو پانے میں کافی مدد مل رہی ہے۔ 50 కోట్ల రూపాయలతో 2.6 కిలోమీటర్ల పొడవున ఉండే ఒక స్టీల్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. దాంతోపాటు రామ్నగర్ నుంచి బాగ్లింగంపల్లి దాకా కూడా మరొక 900 మీటర్లతో ఒక 76 కోట్ల రూపాయలతో మరొక ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణానికి కూడా మొత్తం కలిపి 426 కోట్ల రూపాయలతో ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గడిచిన 6 సంవత్సరాలుగా మరి ఎన్నో రకాల రోడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని హైదరాబాద్ మహానగరంలో మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. అందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి కొన్ని సంయుక్తంగా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఉదాహరణకి అంబర్పేట కానీ, ఉప్పల్ కానీ, ఇంకా ఇతర నిర్మాణాలు కేంద్రంతో కలిసి సంయుక్తంగా నేషనల్ హైవేస్తో కలిసి చేస్తూ ఉన్నాం. మిగతాయి పెద్ద ఎత్తున 6,000 కోట్ల రూపాయల వివిధ కార్యక్రమాలు ఎస్ఆర్డిపి రూపంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి. سیکریٹریٹ میں 2 مساجد اور ایک مندر کو مسمار کیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ کے سی آر کئی حلقوں کی جانب سے تنقیدوں کی زد میں ہے اور مذکورہ تنقیدوں کا جواب دینے کے لیے ٹی آر ایس قائدین کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر کی جانب سے مذکورہ واقعے پر افسوس اور ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کی جانب سے بیان کا خیر مقدم کرنے کے بعد اب دیگر ٹی آر ایس قائدین، جن میں رکن اسمبلی ڈی ناگیندر، میئر بی رام موہن اور چیف ویپ
MS प्रभाकर ने तेलंगाना भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मस्जिद और मंदिर की निदामी कार्रवाई पर आवाम को भड़का रही है, जबकि वज़ीर आला ने इस सिलसिले में वजाहत कर दी है। मज़कूरा कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए किए जा रहे इक़दामात का हवाला देते हुए दावा किया कि वज़ीर आला KCR एक सेकुलर कायद हैं। కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ఎప్పుడు కూడా గతంలో మనం చూసినాం, రాజకీయంగా ఎవరికైనా గద్దె పైన పెట్టాలంటే మత ఘర్షణ చేసేవారు, రాజకీయంగా ఎవరైనా గద్దె దింపాలన్నా కూడా మత ఘర్షణ చేసేవారు. ఇది వాళ్ళ సంస్కృతి, వాళ్ళ కల్చర్. అవి మర్చిపోయి ఏవేవో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మొదటిసారి ఆయన ఒక ఎంపీ కానీ, ఇక్కడ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఏదో ఒక్కసారి ఎంపీగా గెలిచినారు కానీ ఇక భూమి పైన నడుస్తలేరు. వాళ్ళు ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు దొంగ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్న ఆ దొంగ ఎంపీ వాడైతే వాడికి అసలు వాళ్ళ వయసు ఎంత, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు ఈరోజు దేశంలో ఎవరైనా సెక్యులర్ వ్యక్తి అంటే ఈరోజు కేసీఆర్ గారు. కేసీఆర్ గారికి మతం, ప్రాంతం, కులం లేదు. కేసీఆర్ గారంటే తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారంటే మానత్వం, కేసీఆర్ గారంటే పేదరికం. దాంట్లో కులం లేదు, మతం లేదు. అందరినీ కలిసికట్టుగా వారు ఈరోజు ఒక మంచి రాష్ట్రం, ఒక బంగారు తెలంగాణ బాబు వెళ్తూ ఉంటే ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి, వీళ్ళకి, బీజేపీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా విమర్శలు. ఈ 5-6.5 సంవత్సరాల్లో హైదరాబాద్లో ఒక్క ఇన్సిడెంట్ కూడా మత కల్లోలాల విషయంలో ఎక్కడ మనం పత్రికలో కానీ లేకుంటే ఎక్కడ కానీ జరగలేదు. ఇంత ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం హైదరాబాద్ సిటీ ప్రజలు ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా మరి అందరు సహకరిస్తుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు, ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి చెప్తున్న మరి ఈ పెద్దలంతా ఒక్కసారి గతానికి పోతే మరి అర్థమవుతుంది. ఇదే ఫస్ట్ టైం కాదు. మరి అభివృద్ధికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు వచ్చినప్పుడు ఆ మతాలకు సంబంధించిన పెద్దలతోటి సామరస్యంగా మాట్లాడి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు అడ్డం రాకుండా, ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి చాలామంది సహకరించడం జరిగింది. ఎన్నో సందర్భాల్లో సామరస్యంగా ముందు తీసుకుపోయిన సందర్భం ఉంది. कांग्रेस पार्टी की अक़लियती कायदीन ने सेक्रेटरीट में मसाजिद के निदान की मजम्मत करते हुए गांधी भवन में वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस ज़िमन में कायदीन का एक इजलास कांग्रेस सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में मुतफ़िक़ा क़रारदादें मंजूर की गईं और जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाने की मुसलमानों से अपील की गई। इस मौके पर नायब सदर TPCC ज़फ़र जावेद, SK अफजलुद्दीन, समीर वलीउल्लाह के अलावा दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब को स्टेटमेंट देके कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत अफसोस है कि दोनों मस्जिदें और मंदिर उसका मलबा गिरने से शहीद हो गए। बड़े अफसोस है। CM रियासत भर में हुकूमती प्रोग्राम हरित हरम का 6वां मरहला जारी है, जिसके तहत शजरकारी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने शादनगर असम्बली हल्के के इलाके कातनपल्ली में पौधे लगाए। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। रियासती वजीर ने इस मौके पर बताया कि वज़ीर आला KCR रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाना चाहते हैं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ग़र्ज़ से मज़कूरा प्रोग्राम शुरू किया गया है। 5 कामयाब मरहलों के बाद 6वां मरहला जारी है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से अपील की है कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड-19 के सिलसिले में किए जा रहे मुआयनों के सेंटर से इस्तेफादा करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तालाब कट्टे में वाक़े प्राइमरी सेंटर में एंटीजन टेस्ट करवाया, जबकि निज़ामिया तिबी शिफाखाने में RT-PCR का टेस्ट करवाया। बाद अज़ां उन्होंने मीडिया से इस सिलसिले में बात भी की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमरा तालाब चिंचलम डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा दीगर मौजूद थे।
जैसा कि आपने देखा कि मैं तालाब कट्टे के अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में एंटीजन का टेस्ट करवाया और अभी मुझे यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब, क्या नाम है, डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर सैयद मुनव्वर ने अभी बताया है कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है, ये एंटीजन का है। RT-PCR का कम से कम 30 घंटे लगेंगे, उसको 30 घंटे में मालूम होगा, तो इसमें डरने की बात नहीं है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ तेलंगाना हुकूमत तरफ से अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर एंटीजन का टेस्ट हो रहा है, जाइए, टेस्ट करवाइए, ताकि आप अपनी जान को बचा सके, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को, अपने महल्ले को, रियासत को महफूज रख सकें। जैसा कि आप तमाम लोग ये बात जानते हैं कि पूरे मुल्क में और मुल्क की हर रियासत में, शहरों में, बशमूल हमारी तेलंगाना की रियासत और शहर हैदराबाद में भी बड़ी तेज़ी के साथ ये कोविड वायरस फैल रहा है और कई लोगों की अमवात भी हुई हैं। इस सिलसिले में मैं बार बार आवाम से इस बात की इल्तिजा कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप अपना टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि हम टेस्टिंग करवाने से ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं और उनका फ़ौरन, अगर खुदा न खास्ता किसी को मालूम होता है कि वो पॉजिटिव आए हैं, तो फ़ौरन उनका इलाज शुरू किया जा सकता है और उनको सेहत भी हो सकती है और बल्कि हम उनकी जान को बचा सकते हैं। इसीलिए आज मैं ख़ुद हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में चार मीनार यूनानी दवाखाने में जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो RT-PCR टेस्टिंग हो रही है, मैं आज वहाँ पर गया और ख़ुद अपना टेस्ट करवाया हूँ और साथ ही साथ तालाब कट्टे में जो आप देख रहे हैं कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर एंटीजन का टेस्टिंग भी हो रही है। तो यहाँ पर भी आकर मैं यहाँ पर अपना एंटीजन का टेस्ट करवाया हूँ। साथ में मुकामी रुकने बल्दिया मोहतरमा नसरीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे मेंबर उमर साहब भी थे। हम तीनों ने यहाँ पर एंटीजन का टेस्ट करवाया। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, चाहे आप शहर हैदराबाद या रियासत तेलंगाना में बैठकर इस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं, कि आप फ़ौरन अपना टेस्ट करवाइए। जहाँ जहाँ हुकूमत की तरफ से ये टेस्टिंग सेंटर्स है, वहाँ पर जाइए, मुफ्त में, फ्री में RT-PCR और एंटीजन टेस्ट हो रहा है। हैदराबाद पार्लियामेंट हलक़े में एंटीजन की टेस्टिंग हो रही है, कम से कम 25 अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर। फ़ौरन वहाँ पर जाइए। ख़ास तौर से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ, जो हमारी बहनें बेटियाँ हामिला हैं, उनका टेस्ट करवाइए। जो हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग डायलिसिस उनको करवाना है, वो पहले अपना टेस्टिंग करवाइए। जिनको जो दिल के अमराज या कार्डियक प्रॉब्लम है, वो टेस्टिंग करवाइए। कैंसर जिसको है, वो टेस्टिंग करवाइए। जिनके लंग्स या फेफड़े कमज़ोर हैं, वो टेस्टिंग करवाइए। जो लोग मोटे हैं, ज़्यादा जिस्मानी वज़न ज़्यादा है, तो उनका टेस्टिंग करवाइए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तमाम लोग पहले जाकर अपनी टेस्टिंग करवाइए। और टेस्टिंग करवाने में कोई मायूब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव आता है। मकसद एक ही है कि वायरस को कंट्रोल किया जाए। वायरस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? टेस्टिंग से कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से कर सकते हैं। जब बाहर निकलेंगे तो हम अपने चेहरों पर मास्क लगाएं और फ़ौरन दवाखाने को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को लेकर जाएं। ये अहम चीज़ों पर आपको गौर करना है और इस पर सख्ती से अमल करना है। सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। गैर ज़रूरी अपने घर से मत निकलिए। अगर आपको किसी रिश्तेदार को बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द है, वो सूंघने की सकत खो रहे हैं, मुंह का मज़ा ख़त्म हो रहा है, तो फ़ौरन हिमाकत मत करिए, दवाखाने से रुजू होइए, टेस्टिंग करवाइए और उनका तिबी इलाज करवाइए। और साथ ही साथ मैं जानता हूं कि बहुत से बड़ी तादाद में गरीब अवाम हैं और इनके इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल है, किंग कोटी अस्पताल है, एरागड्डा में चेस्ट हॉस्पिटल है, नेचर क्योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अगर किसी पेशेंट को पॉजिटिव आता है तो गांधी अस्पताल में उनको शिफ्ट किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, गांधी अस्पताल में अगर हमारी कोई बहन या बेटी हामिला है और उनको कोविड पॉजिटिव आता है, तो आप फ़ौरन टेस्ट कराकर वो रिपोर्ट को लेकर गांधी अस्पताल चले जाइए। वहाँ पर उनको एडमिट भी किया जाएगा। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ आपको
एक BS मख्ता इलाका है, चीफ मिनिस्टर के घर के सामने के इलाके, वहाँ पर एक हमारी तबस्सुम नामी एक बच्ची थी। कॉरपोरेट हॉस्पिटल ने हाथ उठा दिए, इनकार कर दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। उनके वालिद बहुत परेशान हुए, फ़ौरन गांधी अस्पताल लेकर गए, वहाँ पर उस बच्ची को एडमिट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल करम से हमारी बेटी ने वहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया, अभी उसका इलाज हो रहा है। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो गरीब अफराद हैं, टेस्टिंग करवाइए खुदा के लिए, ताकि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर फ़ौरन आपका इलाज शुरू हो सके। सरकर्दा मुस्लिम मजहबी कायदीन ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से की जा रही तिबी खिदमात की सताइश की है। अमीर जामे निज़ामिया मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन सावरी, शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना नेमत के अलावा दीगर मजहबी कायदीन ने ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी तौर पर बनाए गए खुसूसी वार्ड्स और सहूलतों का मुशाहिदा किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम वार्ड्स और सहूलतों के बारे में भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर मौलाना अनवार अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये पूरा सही करा दे रहा, वो निकलवा दे रहा, इधर आ रहा था। ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में सरकारी दवाखानों में कोरोना वायरस के टेस्टिंग मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने दवाखाने के अमले से भी बातचीत की। उन्होंने आवाम से भी टेस्ट के लिए आने की अपील की। वाज़ेह है कि अवामी नुमाइंदे मुतालिका हल्कों में क़ायम किए गए टेस्टिंग सेंटर्स का मुआयना करते हुए वहाँ दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा ले रहे हैं ताकि अवाम में एतमाद पैदा हो सके। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलंगाना की TRS हुकूमत कोरोना मुतासरीन का मौसर इलाज नहीं करवा रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि आवाम को कोरोना वायरस की वजह से खौफजदा हैं, दूसरी जानिब KCR फार्म हाउस में आराम कर रहे हैं, जबकि रियासत में यौमिया 3480 टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि खानगी दवाखानों में 50% बिस्तर हुकूमत को अपनी तहवील में ले लेना चाहिए और जिस जिस दवाखानों में बिस्तर खाली हैं उसकी तफसीलात आवाम के लिए इंटरनेट पर ऑनलाइन दस्तियाब रखी जाए। अलावाजी कोरोना को आरोग्यश्री इलाज के तहत शामिल किया जाए। हैदराबाद की होटल्स को भी तहवील में लेकर उन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया जाए। उन्होंने खानगी तालीमी इदारों की मनमानी पर भी अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत को इस सिलसिले में मदाखिलत की अपील की। సరే పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండిపోయి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవుదామంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళకి అందుబాటులో లేవు. కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్రం ప్రజలు ప్రమాదంలో పడ్డారు.
చాలా ప్రమాదంలో పడ్డాం. ఇప్పుడు అవసరం అది సమగ్ర సర్వే అనేది. మనకు కావాల్సినంత ఉద్యోగ వ్యవస్థ ఉంది, ఆశా వర్కర్స్ ఉన్నారు. అందరిని పెట్టి సాధ్యమైనంత వరకు టెస్టులు ఎక్కువగా పెంచండి, చేపించండి. ఉన్న వనరులన్నింటినీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలను బతికించడం కోసమే వాడండి. ముందు ప్రజలు బతుకుంటే, రాష్ట్రం బతుకుంటే ఆ తర్వాత ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. ఇది వదిలేసి మిగతా కార్యక్రమాల మీద దృష్టి సారించి మీకు ఎక్కడికైతే లాభాపేక్ష వస్తుందో దాని మీదనే ఆలోచన చేసి ఆ కార్యక్రమం చేపడితే బహుశా తెలంగాణ సమాజం కానీ భారతదేశం కానీ మిమ్మల్ని క్షమించదు, చరిత్ర అంతకంటే క్షమించదు. దయచేసి దీని మీద దృష్టి సారించవలసిందిగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. कोविड-19 मरीजों के इलाज व मुआवजे के लिए गांधी हॉस्पिटल रियासत भर में मरकजी हैसियत रखता है, जहां तकरीबन 2000 से ज़ायद मरीजों का बैक वक्त इलाज किया जा सकता है। तहम गांधी हॉस्पिटल कोविड-19 वबा के दौरान किसी न किसी मसले को लेकर सुर्खियों में बना रहा है। गांधी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमात अंजाम देने वाली तकरीबन 200 नर्सेस ने 11 जुलाई को अपनी तिबी खिदमात का बॉयकॉट करते हुए मुतालबा किया कि उन्हें मुस्तकिल मुलाजिमत दी जाए और उन्हें दी जाने वाली तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। वाज़ेह है कि कुछ दिन कबल जूनियर डॉक्टर्स ने भी एहतजाज करते हुए अपने मुतालबात को मनवाया था और ख़ुद रियासती वज़ीर सेहत को इस सिलसिले में मदाखलत करते हुए उनकी हड़ताल और एहतजाज को ख़त्म करवाना पड़ा था। उप्पल हुदूद में पेश आए सड़क हादसे में पुलिस स्टेशन से वाबस्ता स्पेशल पुलिस ऑफिसर ब्लू कोट्स की ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। जख्मी हालत में उसे खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जान बरना हो सका। मुतवफ़ी की शिनाख्त 22 साला ब्लू कोट्स अजय कुमार की हैसियत से की गई है, जबकि इस हादसे के वक्त उसके हमरा एक कांस्टेबल भी था जो जख्मी हुआ है। मुताल्लिक़ा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए कार को जब्त किया और कार चलाने वाले अभिराम रेड्डी को भी हिरासत में लिया गया। अहमद कॉलोनी नरखी फूलबाग में वाक़ एक मकान में सरक़े की वारदात पेश आई। चंद्रंगोटा पुलिस के मुताबिक इस सरक़े की वारदात के दौरान सारखीन ने 3 तोले तिलाई जेवर और 10,000 रुपये नगद रकम उड़ा ली। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और क्लिप्स टीम ने शहायद इकट्ठा करते हुए केस भी दर्ज किया। इस सरक़े के दौरान एक LED भी चोरी होने की बात कही गई है। तीन तोले सोना था। क्या सोना बोले तो क्या बोले? सोना बोले तो क्या? निकलिस बालिया वो आए थी अढ़ाई तोले के पूरे 3 तोले के थे। आधा तोला यहाँ पर रहती किराया घर में। मैं सुबह से नहीं थी, बाजू वाले बोली तो आई थी ऐसा 3 तोले सोना 10,000 और टीवी चले गए घर में से। चोरी भी अभी क्या क्या गया नहीं मालूम, पूरा नहीं देखी, टच नहीं कर कुछ भी। हमारे सास करने गए थे। हाँ शादी में गई उसको मैं अकेली कहाँ होम के हमारे सास के पास चले गई। मैं किराए के घर में? हाँ किराए के घर में है। वहाँ से कैसा कौन बोले आपको? ये बाजू वाले फोन करके बुलाए। नहीं चोरी हुआ नहीं बोले, कुफला टूटे हुए है, आओ जल्दी बोलते आ गए। अच्छा क्या टाइम हो रहा था? 8:45 हो गए। अरे वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कालापत्थर पुलिस ने बाइक्स की सरखे की वारदातों में मुलविस 2 आदि सारखीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कालापत्थर बशारत नगर के साकिनान
अरहान और आदिल 9 बाइक्स के सरखे की वारदातों में मुलविस थे और ये वारदात एक काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद में अंजाम दी गई थी। पुलिस ने मज़कूरा सारखीन के कब्जे से 9 बाइक्स जिनकी जुमला मालियत 6 लाख रुपये है जब्त कर ली। पुलिस के मुताबिक इरहान नकली चाबियों की मदद से गाड़ियों का सरखा किया करता था। रात देर गए और सुबह की अवलिन सातों में वो ये वारदातें अंजाम दिया करता था। मुलज़िम को अदालती तहवील में भेज दिया गया। लिमिट्स में 2 तारीख 7 महीने एक कंप्लेंट आया है, उसका घर के सामने गाड़ी पार्क करके सुबह आके देख लिया तो गाड़ी थेफ्ट हो गया बोल के हम इमीडिएटली FIR इशू कर दिया। उसके बाद हमारा क्राइम टीम से फॉर्म करके सर्चिंग में लगा है। कल शाम में ये 2 आदमी सस्पेक्टेड पर्सन्स मिला चेकिंग में, वो लोगों को पुलिस स्टेशन ला के थरोली वेरीफाई कराया तो टोटल 9 व्हीकल्स वो लोग कबूल लिया। उसके बाद टोटल पूरा व्हीकल्स रिकवरी करा। ये हमारा पुलिस स्टेशन में एक्टिवा व्हीकल है और मलकनामा में 1 व्हीकल, शालीबंडा में 1 व्हीकल, कामाटीपुरा में 1 मोटरसाइकिल और कुशियानीवाला में 1 नया बुलेट और 4 साल पहले सैफाबाद में 1 हीरो होंडा मोटरसाइकिल। ऐसा टोटल मैरार जनपल्ली में ये पूरा पुलिस स्टेशन में उन्होंने थेफ्ट करके अक्यूज नंबर 1 पूरा उसका घर में रख लिया था और ये दोनों मिलके एक प्लान से ये थेफ्ट करके बेच के ये करेंगे। ये सीज़न में कुछ लॉकडाउन में कुछ कामा नहीं मिल रहा, पैसा कमाएंगे बोल के ये लोग पीने की आदत है, वो हिसाब से पूरा दोनों मिलके ये व्हीकल से करा। आज पूरा रिकवरी करने के बाद हम अरेस्ट कर दिया लोगों। इन लोगों के कुछ साबिका में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है सर? इससे पहले के रिकॉर्ड बोले तो ये 4-5 साल से ये लोग कर रहा। एक व्हीकल तो 2014 सैफाबाद में था, उसके बाद अब लॉकडाउन पीरियड में ये पूरा 8 व्हीकल से करा। प्रीवियस हिस्ट्री अभी तक वो लोग नहीं कबूल लिया, फिर पुलिस कस्टडी में लेता हूँ। जब उसमें भी कुछ मालूम चला तो वेरीफाई करके ये कर देते। अब टोटल वर्थ 6 लाख सब है। ये बोलते नया बुलेट है 2 लाख का और एक्टिवा भी 80,000 के ऊपर है। वैसा 4 व्हीकल्स एक्टिवा ऐसा टोटल 9 व्हीकल्स है करा, अबाउट 6 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी रिकवर करा। आज ये लोगों को जुडिशियल रिमांड में प्रोड्यूस करो। खलीजी मुल्क ख़तर में वाक़ इंडियन एम्बेसी की जानिब से और ICB फोरम की नुमाइंदगी पर ख़तर में फंसे तारिकीन वतन को वापस भेजने के ग़रज़ से वंदे भारत मिशन के चौथे मरहले के दौरान जुमला 8 फ़्लाइट्स का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले के तहत पहली फ़्लाइट 11 जुलाई को दोहा से परवाज़ कर गई। तेलंगाना एसोसिएशन ख़तर के सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन के मुताबिक एसोसिएशन के अरकान ने रात दिन मेहनत करते हुए ऐसे वर्कर्स के लिए जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड ना रखते थे उनके टिकट्स बुक किए और टिकट्स जारी करवाए गए। इस सिलसिले में सदर एसोसिएशन ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने एसोसिएशन के तमाम अरकान के बशमूल इंडियन एम्बेसी, सदर ICB फोरम अजीम अब्बास, नायब सदर महेश गौड़ा, शीन सर्विसेज लत्फ़ी अहमद से ताउन करने पर इजहार तशक्कुर किया। फ़्लाइट में सवार होने के बाद तमाम मुसाफिरीन ने तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन ख़तर से इजहार तशक्कुर करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गोलकोंडा पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बगैर कानूनी लाइसेंस के गैर कानूनी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स फरोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 34 साल मोहम्मद उमर साकिन प्रेमनगर इरागड्डे को हिरासत में लिया गया। उसके कब्जे से मुख्तलिफ वजन पर मुश्तमिल जुमला 25 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब्त किए गए।
सिक्योरिटी कंसल्टेंट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और रिटायर्ड ACP महकमे पुलिस मोहम्मद ताहिर अली इंतकाल कर गए। महकमे पुलिस से सबदोश होने के बाद वो सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हो गए थे। मोहम्मद ताहिर अली ने अपने दौरे मुलाजिमत में साउथ जोन के कई पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, जिसके बाद तकरीबन 2012 में उन्हें फलकनुमा डिवीज़न का ACP भी बनाया गया था। वो उर्दू और तेलुगु ज़बान पर अबूर रखते थे, जबकि उन्हें उनकी खिदमत के एवज़ सेवा पदकम और उत्तम सेवा पदकम अवार्ड से भी नवाजा गया था। अलावाजी उन्होंने हज वॉलंटियर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इंदिरा पार्क का VST तामील किए जाने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर स्टील ब्रिज के तामीरी कामों का रखा गया संग बुनियाद। मरकजी ममलिकती वजीर और रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श ने तकरीब में की शिरकत। वज़ीर आला KCR की वजाहत के बावजूद कांग्रेस पार्टी मंदिर मस्जिद इन्हदामी कार्रवाई पर आवाम को भड़का रही है। वज़ीर आला अक़लियत दोस्त और सेकुलर TRS कायदीन ने किया दावा। सेक्रेटरीट में वाक़ 2 मसाजिद के इन्हदाम की मज़म्मत। वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश। कांग्रेस अक़लियती कायदीन का एहतजाज। हुकूमत की जानिब से कायम किए गए टेस्टिंग सेंटर से इस्तेफादा करने रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से की अपील। गांधी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत अंजाम देने वाली नर्सेस ने खिदमत को मुस्तकिल करने के मुतालबे के साथ दर्ज करवाया एहतजाज। तिबी खिदमत का किया गया बायकॉट। उप्पल सड़क हादसे में कार से हुई टक्कर में ब्लू कोट SPO फौत। मुतालिका पुलिस ने कार जब्त करते हुए मुकदमा किया दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।